there will be three very important things that I will be telling in this video. One is how to analyze the mocks. Second is how to make notes. I'll also show you some sample notes, and the PDF of these sample notes will be on the Understand UPSC Telegram channel. And the third thing is, which nobody talks about, is a caution or a disclaimer while solving the notes, a warning that you need to take care of. So even if you don't want to listen to the entire video, do not miss these three things. In तीन चीज़ों के लिए बैठो, because these are very important. Okay, for anybody who is going to solve even a single mock for prelims 2024. ठीक है. Good evening everybody, this is Satyam Jain. I welcome you back to Understand UPSC, and in this particular video we will be dealing in detail with every query related to prelims mock. Okay, we'll go one by one and we'll be dealing with everything. So this is the first thing. Why to give mocks? Why should we give mocks? First important thing is that it is a source of practice. Once you read a book, it is just reading. You store some information, but if you do not practice it, you will never come to know if you are reading the right thing or if you are remembering it correctly. If you are able to use your knowledge from what you have read to implement on the paper. Similarly, think MCQ. Mocks help you think in the form of MCQs. If you read a chapter on fundamental rights and you solve a mock paper on it, if you solve some questions on it, the next time when you will be revising it, you will be recalling कि यार इस line से ये question बन सकता है. There can be this particular question from this particular line. So you will start thinking in the MCQ format, which is very important for prelims perspective. What you read, you forget. What you solve, you always remember. Because when you are reading, your mind is passively gathering information, but when you are solving a mock, you are actively engaging in it. So you remember a lot of things. और अगर mistake की है फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर तो बहुत ही बढ़िया. That is why I say making mistakes in mock is not a bad thing. It's a good thing rather. जब भी आप कोई मिस्टेक करेंगे, you will read it even more carefully. You will read the explanation carefully. So ज़्यादा चीज़ दिमाग में रहेगी. And as I have always been saying, the MCQ solving aptitude, the MCQ solving skill, mocks help in developing that to some extent. आपको questions देखने आ जाते हैं. This is related to this as well. When you read your paper, when you read your normal books, standard books, तब आप कैसे उनको पढ़ रहे हैं? Are you reading them passively or are you reading them in the form of an MCQ? That is very important. Please keep making notes of whatever I'm saying. Don't sit without a pen and paper, okay? Keep writing everything down and follow these things for the next 5 months. It is very crucial and very important. Then, what to test through mocks? What do you need to test through mocks? When you are solving mocks, what do you need to test? First and foremost thing is information and knowledge. The information that you gathered on parliament, are you able to use it? The knowledge that you gathered on state legislature, are you able to use it to solve questions? Your understanding of a particular subject, of a particular chapter, of a particular area, and subject matter knowledge. कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल से देर इज जोग्राफी है ना, उसमें एल नीनो का कॉन्सेप्ट है, यू रेड इट एंड देन द क्वेश्चन इज ट्विस्टेड अ बिट, है ना, उसमें सपोज करो गल्फ स्ट्रीम की जगह कोई और स्ट्रीम डाल दी, कुछ भी ऐसा, कुछ भी थोड़ा सा चेंज कर दिया. आर यू एबल टू कैच इट? You will only be able to catch it if you have understood the concept. So the second thing that you will be checking is your understanding and subject matter का knowledge. Then your attention to details. बहुत छोटी छोटी details. While reading the article, वहाँ पे all citizens लिखा था कि Indian citizens लिखा था, या वहाँ पे all citizens लिखा था कि every person लिखा था. Right to property. UPSC asked the question on this and सिर्फ इतना change किया कि every person लिखा है या all citizens लिखा है, बस. सो दिस अटेंशन टू डिटेल, ये पढ़ते टाइम नहीं आती है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आती है. जब आपको पता चलता है अबे यार इस चीज की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया, ओके नेक्स्ट टाइम आई रिमेंबर. देन योर रिविजन एंड रिकॉलिंग एबिलिटीज. ये मैंने आपको वाईपीएलपी के प्लान में बताया ही है कि आप रिवाइज जब फेज 2 में फेज 3 में रिवाइज करेंगे तो आप अपने पिछले मॉक्स भी रिवाइज करेंगे. वो कैसे करने हैं, उनके नोट्स कैसे बनाने, इसी वीडियो में बताऊंगा. कीप लिसनिंग, ठीक है. सिमिलरली रिकॉलिंग एबिलिटीज, वॉट एवर आर यू एबल टू रिकॉल, आपने जो पढ़ा था आप उसमें से कितना रिकॉल कर पा रहे हो, समझ आ गया. नेक्स्ट, वॉट नॉट टू एक्सपेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट नॉट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ मॉक्स, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो. फर्स्ट इज यूपीएससी लेवल. वाई? बिकॉज whosoever coaching is making a mock, they are just paying 20 to 50 bucks to their per question to their question setter, and this particular question setter has to set 3500 questions at least in a year. तो ये बहुत डिटेल में घुसेगा, ये कहीं भी जाएगा, ये इतना दिमाग नहीं लगाएगा कि यूपीएससी के लेवल को, यूपीएससी के पैटर्न्स को मैच कर पाए, नहीं. इसलिए मैंने पिछले स्लाइड में क्या बोला आपसे, दैट यू जस्ट नीड टू टेस्ट योर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड नॉट द यूपीएससी लेवल और यूपीएससी पैटर्न.
or the UPSC themes. There will be various questions from such absurd themes जो यूपीएससी कभी नहीं पूछता है. फॉर एग्जाम्पल से द लास्ट टाइम यूपीएससी आज द क्वेश्चन ऑन कैलेंडर्स या मिलिट्री एक्सरसाइज, है ना, इतने सालों पहले कभी मिलिट्री एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आया था और आज तक कोचिंग उस पर भर देते हैं क्वेश्चन. सो डोंट वरी इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चन बिकॉज यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देयर. सो यूपीएससी लेवल पैटर्न्स एंड थीम्स यू कैनॉट एक्सपेक्ट आउट ऑफ मॉक्स. इस चीज का आपको क्या रखना है, याद रखना है. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज चेक कर रहे हो और उसको एनहांस कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो. नाउ जो मैंने आपको तीसरी चीज बताई थी जो आपको बहुत जरूरी है सुनना, वार्निंग एंड क्वेश्चन. बहुत ध्यान से सुनना ये बात. डोंट गेट हैबिचुअल टू योर मॉक्स. डोंट गेट हैबिचुअल टू योर मॉक्स. क्या होता है कि व्हेन, एज आई वाज सेइंग, a person UPSC has to make say 18 MCQs on polity, but on the other hand a coaching has to make nearly 500 to 600 MCQs on polity. So obviously this will be in too much detail and from areas that UPSC is not going to ever ask. बात समझ आ रही है? So when this happens, you become habitual to these 500 600 questions and the details that they are digging in. तो आपको इसीलिए PYQs करना इंपॉर्टेंट है सो दैट यू कंटिन्यू टू रिकॉल वट एवर यू हैव बीन रीडिंग. और वॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, नॉट फॉर द मॉक्स. मॉक्स के लिए नहीं पढ़ना है, यूपीएससी के लिए पढ़ना है. मॉक्स से एनहेंस करना है नॉलेज को और एग्जिस्टिंग नॉलेज को टेस्ट करना है. ये पूरा फंडा होता है, समझ लो इस चीज को. डोंट सिट एंड क्राई टुमारो इफ यू आर गेटिंग लेस मार्क्स, 10 मार्क्स और 20 मार्क्स लेस इन मॉक जस्ट बिकॉज इट वाज अ वेरी टफ मॉक और बिकॉज इट वाज आस्क्ड फ्रॉम एरियाज दैट यूपीएससी विल नेवर आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम. ठीक है. एंड दैट इज वाई देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू PYQs. नो सब्सटीट्यूट व्हाटसोएवर. आप 50 लाख रुपए का कोर्स खरीद लो, PYQs का सब्सटीट्यूट कुछ नहीं है. और PYQ पे कोर्स नहीं खरीदना है. when you do PYQs, when you solve PYQs, it only helps then. बात समझ आई है, क्लियर है? So don't get habitual to the type of questions being asked, the areas of questions being asked, and जो क्वेश्चन का लिखने का तरीका है, जो लैंग्वेज है, जो सिंटैक्टिकल चीजें हैं, उनको हैबिचुअल नहीं होना है. हैबिचुअल किस चीज से होना है? PYQ से. जस्ट रिमेंबर दिस. ये बहुत कम लोग ध्यान देंगे इस चीज पे और वहां पे जाके बोलेंगे कि मैंने ओवर थिंक कर लिया इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि आप हैबिचुअल हो गए ओवर थिंक करने के. डोंट डू दिस. कीप सॉल्विंग PYQs एंड जस्ट टेस्ट योर नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ मॉक्स. ऑल राइट, हाउ मेनी मॉक्स टू अटेम्प्ट? देखो, दो तरह के मॉक्स होते हैं. एक होते हैं सब्जेक्ट वाइज, एक होते हैं फुल सिलेबस. तो ये फुल सिलेबस मॉक्स आप दे सकते हो ऐसे 5-6 टुवर्ड्स द एंड या फिर बीच बीच में. मान लो एक फेज कंप्लीट हो गया तो जैसे मैं भी इंट्रोड्यूस करूंगा, सरप्राइज मॉक लूंगा आपका, कभी भी ऐसे उठा के एक फुल लेंथ मॉक लूंगा आपका इन द YPLP प्रोग्राम. आई गिव यू अ फुल लेंथ मॉक, पूरा सिलेबस का मॉक लूंगा, सरप्राइज, डेट नहीं बताऊंगा. देन सिमिलरली देयर शुड बी सम सब्जेक्ट वाइज मॉक्स. इसका क्या मतलब होता है कि भाई चलो पॉलिटी कवर कर लिया तो पॉलिटी का एक मॉक दे दिया, फिर पॉलिटी का सपोज करो आधा कवर कर लिया तो एक मॉक दे दिया, देन दूसरा आधा कवर कर लिया तो दूसरा मॉक दे दिया, देन इन किसी और फेज में एक और मॉक दे दिया. सो 2 to 3 मॉक per subject are more than enough and 5 to 6 FLTs are more than enough. अब आप हिसाब लगा सकते हो कि कितना बैठेगा. So like overall if you are giving 20 mocks, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत होते हैं, बहुत. See, rather than how many mocks you are giving, what your focus should be on, that what you are learning from those mocks and how you are analyzing those mocks. Are you converting those mocks to notes or not for your further revision and value enhancement, knowledge enhancement? ये सबसे इंपॉर्टेंट है. एक नंबर फिर भी मैंने आपको रफ दे दिया है. 20 इज अ रफ नंबर. इसमें आप प्लस 10 तक जा सकते हो, 30 तक जा सकते हो, बट देन दैट्स इनफ, है ना. कोई जरूरत नहीं है और इससे बियॉन्ड जाने की. देन व्हेन टू गिव मॉक्स एंड हाउ टू शेड्यूल देम. तो ये मैंने आपको शेड्यूल ऑलरेडी बना के दिया इन द YPLP प्रोग्रामिनेशन. उसमें पूरा का पूरा वी हैव इन द प्रोग्राम वी हैव कंप्लीटली कवर्ड इट कि आपको कौन सा मॉक कब देना है, क्या करना है, हाउ यू हैव टू रिवाइज इट, एवरीथिंग इज कवर्ड. हम ही आपको करवा रहे हैं. फॉर एनीबडी हु इज फीलिंग की हु इज न्यू ऑन द चैनल, ये फ्री है. ओके, ये सब फ्री है. सो आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना है बिकॉज पीपल कम ऑन द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे आर लाइक ये YPLP की पेमेंट कहाँ करें, बिकॉज इट इज़ वेरी टफ टू बिलीव कि ऐसे प्रोग्राम फ्री रन कर सकता है, बट नहीं, वो फ्री है. डोंट वरी अबाउट इट. सो व्हेन टू गिव मॉक्स पूरा उसका शेड्यूल का आपको बना के दे दिया. वेन एवर यू आर डन विद अ सब्जेक्ट, आपने आपको टारगेट दो दैट आई विल बी डूइंग दिस सब्जेक्ट इन द नेक्स्ट 7 days एंड देन ऑन द 7th day और द 8th day गिव अ मॉक अराउंड इट, एनालाइज इट एंड अंडरस्टैंड कि आपकी क्या मिस्टेक्स रही हैं, मेक नोट्स आउट ऑफ इट फॉर द नेक्स्ट टाइम सो दैट यू आर एबल टू रिवाइज दीज एरियाज क्विकली. बात समझ आ गई? This is how you give mocks and schedule them. Now, there are some rules that you need to follow while you're attempting mocks. What are these rules? First is time. Always give your mock papers in time. कभी भी ये नहीं कि यार मैं ऐसे 2 घंटे की जगह 3 घंटे बैठा हूँ या मैं एक ही घंटे में उठ जा रहा हूँ. Don't do that. Sit with it. Be ease. Be at calm.
क्योंकि क्या होगा, ऑन द डे ऑफ द एग्जाम दिस पर्टिकुलर थिंग विल हेल्प यू। एग्जाम में तो 2 घंटे से पहले नहीं उठने देंगे और 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देंगे, दिट विल बी 2 - और 2+, ऐसा तो नहीं है, इट विल बी एग्जैक्टली 2। So whenever you're giving a mock, sit for 2 hours and solve it in the best possible manner that you can. Now this is a very important thing that people don't know and don't talk about: the number of questions that you need to solve, that you need to attempt while solving a mock. Number of questions should be as high as possible, AHAP, as high as possible, even if 100 out of 100 questions are attempting, that's completely okay. mock के marks पे आपका UPSC सिलेक्शन नहीं ले रहा है। सो इफ यू आर फियरिंग कि यार ये क्वेश्चन मैंने सोल्व नहीं किया या फिर सॉल्व कर दिया, मेरे को आता नहीं है, गलत हो जाएगा तो मेरे नंबर कम हो जाएंगे, डो नॉट वरी, गेट आउट ऑफ दैट फोबिया, गेट आउट ऑफ दैट फोमो कि आपका दोस्त कितना स्कोर कर रहा है। ठीक है, वाई एम आई सेइंग दिस, अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। सबसे पहली चीज, इफ यू आर अटेम्प्टिंग से 95 to 100 क्वेश्चंस, दिस इज व्हाट आई एडवाइस, 95+ तो करने ही करने हैं। तो 2-3 चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या, even the tough questions, you will spend time upon the tough questions and you will start figuring out slowly कि किस तरीके से, किस पैटर्न से टफ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जा सकता है ना। द इंटेलिजेंट गेसिंग और द एप्टीट्यूड, more importantly the MCQ aptitude will get developed, पहली चीज। दूसरी चीज, when you are making a when you are leaving a question unattempted, you don't focus on it too much, but when you are making it wrong, the next time you will be remembering it कि यार अच्छा उस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, उसमें ये मिस्टेक थी, अच्छा ठीक है अभी समझ में आ गया। बट इफ यू आर लिविंग इन unattempted, you will not read the explanation in detail, you will not understand it. What is very important is that you attempt 95+ questions, 95 to 100 questions, ये आपका टारगेट होना है हर मॉक में। हर मॉक में आता है नहीं आता है, करो, बैठो करो, सॉल्व करो, ध्यान दो, लगाओ, कोई बात नहीं, नंबर कम आएंगे, देखी जाएगी। ओके, देन the method is very simple. You have to sit and solve the question paper in 1 to 2 rounds। ये राउंड्स क्या होते हैं मैं कभी और डिस्कस कर दूंगा, बट यू हैव टू सॉल्व देम इन 1 to 2 राउंड्स इन अ 2 hour सेटिंग। फोकस से, ऐसा नहीं होना चाहिए बीच में कि आपका दोस्त आके आपसे कुछ पूछ रहा है, घर वाले कुछ काम बता रहे हैं, आप स्टॉप वॉच स्टॉप कर रहे हो, वापस जा रहे हो, आ रहे हो, नो, देन डोंट गिव वॉक, मत दो, है ना, मत दो। बीच में कॉल से अटेंड कर रहे हो, कोई कॉल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट डू दिस, मत दो मॉक, मत दो एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है, यूपीएससी इकलौती दुनिया की चीज नहीं है। अगर देना है तो फोकस से दो। द मेथड इज सिटिंग विद फोकस and attempting carefully, attempting each question carefully in a 2 hour setting, एक बार बैठ के, and when your mind is active, ऐसे नहीं कि पूरे दिन थके हुए हैं, रात को डिनर में ठूसा एकदम नान, बटर नान, और तब बैठ के मॉक दे रहे, दिमाग काम ही नहीं करेगा, क्या फायदा है मॉक देने का, मत दो ना, क्यों करना यूपीएससी, मत करो। करेक्ट, तो जब भी मॉक दोगे बहुत ही फोकस से देना है, बहुत ही ज्यादा फोकस से, एक सिटिंग में। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। पीपल डोंट डू दिस एंड देन दे से कि हमें मॉक से फायदा नहीं हो रहा है। ओके, क्लियर। देन विच मॉक्स टू अटेम्प्ट, देखो यार सारी कोचिंग एक ही जैसी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई ज़्यादा मेहनत करती नहीं अपने मॉक के पेपर बनाने में, बिकॉज अल्टीमेटली दे जस्ट हैव टू सेल इट एंड दे डू नॉट केयर अबाउट इट। लास्ट में क्वेश्चन क्लीन करना तो बहुत आसान होता है। व्हेन यू आर मेकिंग 4000 5000 क्वेश्चन, उसमें से कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो जाएंगे, कुछ थीम्स तो रिपीट हो जाएंगे, सो इट इज़ वेरी इजी टू लाइक से कि हमारे यहाँ से आ गया। तो एनी कोचिंग वर्क्स फॉर एग्जाम। तो ज़्यादा दिमाग अगर नहीं लगाना है तो विजन आईएएस की पीडीएफ्स मिल जाती हैं, एंड विजन आईएएस का वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं उसको, फोटो कॉपी मिल जाती है, जस्ट गेट इट, पोस्ट से मंगा लो या पीडीएफ प्रिंट करा लो, या जो भी जहाँ से भी आपको करना है मिल जाएगा, उसको दे दो बैठ के एंड इट इज़ डन। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये कभी कभी अटेम्प्ट किया है तो इसकी क्वालिटी ठीक लगती है मुझे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये यूपीएससी लेवल के, नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग, एंड नो अदर कोचिंग। तो बाकी किसी के देने की आप सोच रहे हो, वो आपकी मर्जी है, मैं आपको एक रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको देना ये दो, नहीं देना अपनी मर्जी से कोई और दे दो, बट बेसिक पैरामीटर रिमेन सेम। ये यूपीएससी लेवल पे नहीं आएगा, ये फोकस से देना है, इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन टेस्ट करनी है बस, ये बेसिक पैरामीटर सेम रहेंगे आपके। क्लियर, चलो। नाउ व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू यूज मॉक्स। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, मोस्ट इफेक्टिव वे हमें क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो फायदा है, तभी वी विल बी एबल टू इंक्रीज आवर मार्क्स। सो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, टू थिंग्स, फर्स्ट इज एनालाइजिंग द मॉक्स एंड सेकंड इज मेकिंग नोट्स आउट ऑफ देम। So let's come to these two very important things. First is how to analyze mocks. Let us have a look at it. देखो, there are various points on analyzing a mock. ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। First is how did you get a question right? देख, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका वो क्वेश्चन ठीक हो गया, आपने उस पर अपने आप को +2 दे दिए, बट नाउ दिस इज नॉट डन। वट इज मोर इंपॉर्टेंट इज आपको वो सही कैसे पता है, हाउ डिड यू गेट इट राइट। फर्स्ट इज नॉलेज, कि आपको उसकी नॉलेज थी, आपने नॉलेज के बेसिस पे उसको सॉल्व किया, सॉल्व इट ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज, एंड यू हैव टू गेट इट करेक्ट, दिस इज गुड। देन देर इज समथिंग लाइक एप्टीट्यूड या फिर इंटेलिजेंट गेसिंग, है ना, कि आपको समझ नहीं आ रहा था, आपको नॉलेज नहीं थी, बट यू न्यू कि, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल दिया कि सम स्नेक्स स्लीप एट नाइट,
है ना। अभी आपने कहीं पढ़ा नहीं है कि रात को सांप सोते हैं कि नहीं सोते हैं, बट अगेन आपने सोचा कि यार दुनिया में इतने सांप हैं, कुछ तो सोते होंगे रात को, एंड देन यू आर एबल टू करेक्ट इट। तो ये तुक्का नहीं है, आई डोंट काउंट इट एज तुक्का। तुक्का ऐसा होता है कि अच्छा ठीक है ये चार नाम दे रखे हैं, कोई भी एक फेंक के मारना है, दैट इज तुक्का। दिस इज नॉट तुक्का, दिस इज एप्टीट्यूड, दिस इज इंटेलिजेंट गेसिंग। एक तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं होता है और 100 तरीके होते हैं, बट दिस इज वन सच एग्जाम्पल। तो इधर इट इज नॉलेज और इज इट एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंट गेस, सबको क्लियरली पता होना चाहिए, क्योंकि जितना ये बढ़ेगा उतना फायदा होगा। ये तो चलो ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी योर बैकबोन, बट दिस विल बी योर फ्रंट जोन। हमेशा नॉलेज को इंक्रीज करते रहना है, दैट इज व्हाट यू नीड टू सी कि आपने कितने क्वेश्चंस नॉलेज के बेसिस पे ठीक किए हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चंस एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट गेसिंग पे ठीक किए हैं, एंड कितने में आपने रैंडम तुक्का मारा है, बिल्कुल एकदम रैंडम। तो ये तो कोई मैटर करता नहीं है ना, दिस डजंट मैटर। ये आपका ठीक है, आप स्कोर में तो अपना आखिर में सब काउंट करोगे ही, बट आपको डीप डाउन पता होना चाहिए कि आपके नॉलेज से कितने सॉल्व हुए हैं, एप्टीट्यूड से कितने सॉल्व हुए हैं। क्लियर, सबसे पहली बात तो ये है, एंड देन यू हैव टू ट्रैक कि ये धीरे 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 दिस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एंड इसमें से कौन से ऐसे थे जो आप नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व कर सकते थे। दिस इज हाउ यू विल एनालाइज योर मॉक। पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात, अगर आपको इफ यू गॉट अ क्वेश्चन रॉन्ग और यू लेफ्ट इट, है ना, यू डिडंट अटेम्प्ट इट, सबसे पहले देखो, वॉज इट फ्रॉम योर सोर्स, द क्वेश्चन जो आपने छोड़ा या फिर जो आपने गलत कर दिया, वॉज इट फ्रॉम योर सोर्स। इफ इट वॉज फ्रॉम योर सोर्स, वर यू नॉट एबल टू रिवाइज और रिकॉल इट, ये इशू हुआ। या फिर रीडिंग मिस्टेक कर दी उस क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में लिखी कोई पर्टिकुलर डिटेल थी, उस पर ध्यान नहीं दिया, आंसर मार्क कर दिया, बाद में पता चला गलत है, वॉज इट अ रीडिंग मिस्टेक और वॉज इट अ सिली मिस्टेक, करेक्ट। और वॉज इट अ सिली मिस्टेक, जैसे मान लो नॉट नहीं देखा, या फिर सी मार्क करना था डी मार्क कर दिया, नो नहीं पढ़ा, समथिंग समथिंग लाइक दिस, तो वॉज इट अ सिली मिस्टेक। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप अ पेपर, राइट, राइट ऑन दिस सिली मिस्टेक्स बाय मी, अपना नाम लिख सकते हो बाय मी करके, है ना, इज इक्वल टू लेस चांसेस ऑफ यूपीएससी या फिर ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स, ऐसे करके इसकी हेडिंग बनाओ, एक पेज बना के रखो, एंड देन कीप राइटिंग ऑन दैट पेज कि ये एक सिली मिस्टेक में करता हूँ, ये दूसरी सिली मिस्टेक में करता हूँ, ये तीसरी सिली मिस्टेक में करता हूँ। कीप राइटिंग देम, 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 जब तक मॉक दे रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। Then you will have a collection of all the silly mistakes that you do. You need to keep it on your table, and before any mock, read this particular page. And on the exam hall, you have to carry this page and you have to read it. एग्जाम हॉल में घुसने से पहले इसको पढ़ोगे कि अच्छा दीज आर द काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स दैट आई मेक, ठीक है। एज सुन एज यू डू दिस, एग्जाम में आपकी सिली मिस्टेक्स कम करने की प्रोबेबिलिटी 90% हो जाएगी। 90% आप चांसेस कम हो जाएंगे दैट विल कमिट अ सिली मिस्टेक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। ये बात समझ आ गई। देन if it was not from your source, it was either from current affair or static and it was not from your source, तो घबराने की कोई बात है ही नहीं। अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पीपल केयर अबाउट क्वेश्चंस दैट वर नॉट फ्रॉम देयर सोर्सेज, मैं कह रहा हूँ उसकी दिक्कत है ही नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली देर आर सो मेनी सोर्सेज दैट यू कैन नॉट कवर देम। इसलिए तो मॉक दे रहे हैं कि अगर किसी और सोर्स से कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो उसको हमारे नोट्स में आ जाए, वो हमारी इन्फॉर्मेशन में ऐड हो जाए, इसीलिए मॉक दिया जा रहा है। तो डोंट केयर अबाउट क्वेश्चंस दैट वर नॉट फ्रॉम योर सोर्सेज, जस्ट ऐड देम इन योर नोट्स एंड यू आर डन। बीट करंट अफेयर, बीट स्टैटिक। अब यहीं पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल डू इज, इफ इट वाज नॉट फ्रॉम देयर सोर्स दे स्टार्ट गो हंट फॉर न्यू रिसोर्सेज एंड सोर्सेज, एंड दिस इज वेयर दे फेल प्रीलिम्स। हैं जी, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन नहीं है, अच्छा कहाँ से है, ओके कोई फलाना किताबा बुक से है, ओके लेट्स गो एंड रीड दिस बुक, यू आर फेल्ड इन प्रीलिम्स। अच्छा जी ये स्पेक्ट्रम से नहीं है, ये कहाँ से है, ये कोई बंसल चट्टोपाध्याय फलाने से है, वहां से जाके पढ़ने लगते हैं, यू आर फेल्ड इन प्रीलिम्स। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू एंड दैट नोबडी टीचेस। मैं गलतियां कर चुका हूँ, प्रीलिम्स फेल कर चुका हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। don't do this, don't care about questions or resources that are not yours. If you are done with standard sources, वो मैं पहले बता ही चुका हूँ आपको, if you are done with standard sources, अगर आपने वो पढ़ लिया, उनको ढंग से पढ़ लिया, and now there is some question that comes out of that resource, don't worry about it, just add it in your notes कैसे बनाने अभी बताता हूँ 2 मिनट में, just add it in your notes and you are done. क्लियर, बात समझ आ गई। सिमिलरली सोर्स से है तो क्या करना है, सोर्स से नहीं है तो क्या करना है। चलो नाउ लेट अस हैव अ लुक हाउ टू मेक नोट्स। देखो whenever you get a question correct by your knowledge, अगर आपकी नॉलेज से सही हो गया वो क्वेश्चन, है ना, if you it was your knowledge and you got it correct, just glance through it quickly, just glance through the explanation quickly, है ना, don't read it line by line क्योंकि ये सही हो गया है। and if you see anything peculiarly new, कि यार बहुत ही नया मेरे को पता नहीं है, add it to your notes, just that particular छोटा सा point, add it to your notes. If you got a question wrong, then
रीड इट, या रॉन्ग हुआ या फिर तुक्का लगा, ठीक है, रीड इट, रीड द डिटेल केयरफुली एंड सी कि ये क्यों गलत हुआ। करेक्ट, आपके सोर्स में अगर था, इफ इट वॉज फ्रॉम योर सोर्स, यू डोंट नीड टू इवन मेक नोट्स आउट ऑफ इट। आप जाके अपने सोर्स में ही अंडरलाइन कर सकते हो और हाईलाइट कर सकते हो। दो तरीके हैं, वन इज दिस, सेकंड इज यू कैन मेक नोट आउट ऑफ इट, है ना, सोर्स से था नहीं था, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, इफ यू आर गेटिंग क्वेश्चंस इनकरेक्ट, जस्ट पिक आउट द पॉइंटर्स, बहुत छोटे छोटे पॉइंटर उठाओ, अपने नोट्स में डालो, बात खत्म हो गई। क्लियर, समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। सो यू कैन ईदर मार्क योर एग्जिस्टिंग सोर्स और यू कैन सिट एंड जस्ट कन्वर्ट देम इनटू नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस हैव अ लुक एट दिस, फॉर एग्जाम्पल से see, look at this particular thing, this is a this is a note of say static portion, ये मेरे static portion का note है ना। अब इसमें if I read something, है ना, for example जैसे ये है, if I read something new, जैसे मैंने पढ़ा कि यार इस पर्टिकुलर पार्क से पेन्नार रिवर जाती है, so I'll just add it here, क्या पेन्नार रिवर जाती है, ये मेरे सपोज करो PYQ के नोट्स हैं, कुछ भी है, I'll just add up पेन्नार, ये मैंने अपने उससे पढ़ा है, किसी मॉक में मेरे को पता चला, I just added it here। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे स्टैटिक के या करंट अफेयर के नोट्स प्लस मेरे मॉक की लर्निंग्स, मेरी मॉक की इंफॉर्मेशन, तो ये कंबाइंड नोट्स बन जाएंगे आपके। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका नोट बनाने का मैं समझा देता हूं, जो कि आपको ध्यान देना है जिसपे, दिस इज द सेकंड वे, है ना, लेट अस सी सम सैंपल नोट्स, दिस इज द सेकंड वे ऑफ मेकिंग नोट्स, ये ध्यान से सुनो सब, सी लेट मी टेक यू थ्रू इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करिए ये है ना, explanation will always have a lot of information, what you need to write is exactly what UPSC will ask, UPSC जितना पूछेगा। for example if say there is something about data governance quality index, ठीक है, कौन रिलीज करता है, नीति आयोग, एंड देन वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट इट जो सिर्फ आपको समझ में आए, सिर्फ आपको, nobody else, CSPS, CSS, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इनका क्वालिटी इंडेक्स कौन करता है, नीति आयोग करता है, उसके ऊपर एक डेटा गवर्नेंस को क्वालिटी इंडेक्स नीति आयोग रिलीज करता है, बिल्कुल छोटा सा अपने हिसाब से। देन हैव अ लुक एट दिस, है ना, जैसे मान लीजिए ये है डिबेसमेंट ऑफ करेंसी, लोअरिंग करेंसी वैल्यू डाउन बाय प्रिंटिंग मोर करेंसी नोट्स, बस इतने में क्लियर हो गया। देन एलपीजी सिलेंडर्स पे कितना जीएसटी लगता है, क्लियर हो गया, पूछा था 2018 में क्वेश्चन यूपीएससी ने, जीएसटी परसेंटेजेस के ऊपर, कंपेंसेशन सेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, उसके अंदर ये जीएसटी कंपेंसेशन फंड, ठीक है। देन पंप प्राइमिंग क्या होता है, इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, बहुत छोटे छोटे में। 20th लाइव स्टॉक सेंसस 2018 हुआ था, कैटल सबसे ज्यादा कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, इससे पहले यूपी में थी, पोल्ट्री सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, बस डन। इतना आपको मिला आपके नोट से, इतने छोटे में बना लिया, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन होता है नोट्स में, उतना सब नहीं लिखना है, वेरी शॉर्ट। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट कौन है, बांग्लादेश है। MSP फॉर MFP रिवाइज एवरी 3 years फॉर बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री आगे क्योंकि मिनिस्ट्री यूपीएससी गलत देगा या फिर पूछेगा। एक्सपोर्ट्स की वैल्यू में सबसे ज्यादा सबसे कम क्या है, एंड देन यू सी अ क्वेश्चन इन द यूपीएससी एंड देन यू मार्क इट करेक्ट, ठीक है। सिमिलरली लुक एट दिस, एडेप्टेशन फंड बाई 2% लेवी ऑन CERs। अब मुझे इसके बारे में बाकी चीजें पता है, सपोज करो एडेप्टेशन फंड के बारे में, बट मुझे ये नहीं पता, बाई 2% लेवी ऑन CERs, सपोज करो मुझे ये नहीं पता, तो इसके बारे में बाकी चीजें याद थी, जो नहीं याद था वो लिख लिया नोट्स में, हेंस एक्सट्रीमली पर्सनल, दैट इज व्हाई नोट्स विल बी योर नोट्स, दैट इज व्हाई यू डोंट नीड टू मेक मॉक्स के नोट्स, नो, मॉक्स का नोट नहीं होता है, किसी मॉक का नोट नहीं बनाना है, किसी मॉक की समरी नहीं बनानी है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक पर्सनलाइज्ड नोट्स आउट ऑफ योर मिस्टेक्स और लर्निंग्स व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ मॉक। तो मॉक की समरी नहीं बनानी है, देयर आर वेरियस इनिशिएटिव्स जो मॉक की समरी बेचते हैं, क्या स्टूपिड चीज है, क्या करोगे उसका, वो कुछ नहीं हेल्प करेगी आपको, मॉक की समरी नहीं, दिस इज अ स्टूपिड थिंग, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पिक अप अ मॉक, सॉल्व इट एंड देन जिस तरीके से बताया इस तरीके से मेक योर ओन पर्सनलाइज्ड नोट्स, देन इट विल हेल्प यू, ठीक है, बात समझ आई। सिमिलरली जैसे देखिए शिवाजी अष्ट प्रधान, है ना, ये किसी मॉक में मिला, पेशवा कौन होते हैं, अमात्य कौन होते हैं, सचिव कौन होते हैं, सुमंत कौन होते हैं, तो शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान कौन थे, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूपीएससी ऐसी लाइंस पे बार बार पूछता है, जिसको एक ही बार कवर कर लिया, नोट्स में कवर कर लिया कोई बात नहीं, स्टैटिक में भी अंडरलाइन कर लोगे कोई बात नहीं, स्टैटिक में जाके किसी एक पर्टिकुलर पेन ऑफ कलर से लिखते रहो, ये मॉक में था, मॉक में था, मॉक में था, या तो ये कर लो या फिर जस्ट कन्वर्ट देम इनटू नोट्स एंड यू आर डन विद। सिमिलरली जैसे ये देखो, है ना, ज्योग्राफी का, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ऊपर, बहुत छोटी सी लाइन, बाकी चीज़ें हमें पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, लेकिन एक छोटी सी लाइन हमें नहीं पता थी तो वो लिख ली है, इंडस कौन सी 4 कंट्रीज से जाती है, कितना कितना परसेंटेज है, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ जाए क्वेश्चन, तो वी शुड नो ऑफ इट। सिमिलरली सेफ्टी, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन लेके आ रहा है,
एंड उसके अंदर क्या चल रहा है. सो योर नोट्स नीड टू बी एक्सट्रीमली पर्सनल, एक्सट्रीमली पर्सनल. ठीक है, जैसे एंशियंट मिडिवल कल्चर है, पीपल रीड सो मेनी सोर्सेज बट यू डोंट हैव टू डू दैट, यू रीड योर स्टैंडर्ड सोर्स एंड देन बेस्ट वे टू लर्न न्यू इन्फो एंड ओवरकम द फियर ऑफ एएमसी इज बाय गिविंग सम मॉक्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू नोट्स. तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट हो जाएगी, यू कीप रिवाइजिंग देम, वहां से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा. ठीक है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ हाउ प्रिसाइज द नोट्स आर, बहुत प्रिसाइज है ना. स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. मौर्यन एज में क्या हुआ, श्रमण ट्रेडिशंस, यक्ष वर्शिप एंड वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस. ठीक है, सिमिलरली बृहदेश्वरा टेम्पल थंजावुर किसने बनवाया, कैलाश टेम्पल कांचीपुरम किसने बनवाया, कब बनवाया. बिकॉज यूपीएससी पूछता है ये टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शंस को क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर दो. सो दीज हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. दिस एंटायर पीडीएफ यू विल गेट ऑन द अंडरस्टैंड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल. आज शाम तक, रात तक डाल दूंगा. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. चौखंडी स्तूपा कहाँ है, उत्तराध्यान सुत किस बुक का नाम है. अब देख लो ये चीज है ना, ये चीजें पूछ रहे हैं यूपीएससी, ये पहले से मेरे नोट्स में ये चीजें. रज्मनामा, ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इनटू पर्शियन बाय मुगल एम्पायर. देन पीडीएम में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये नोट्स कभी अभी बनाए हैं. दीज आर 2-3 year old नोट्स मेड बाय अ स्टूडेंट ऑफ एसएफजी इटसेल्फ, है ना, हु इज करंटली अ रैंक होल्डर. तो हर वो इंसान जो प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है वो कर रहा है, राइट. झांस क्लियर बाय लेडी एट सन टेम्पल कोनार्क. सो जितना यूपीएससी पूछ सकता है या जितना आंसर आइडेंटिफिकेशन के लिए इनफ है उतना ही लिखना है नोट्स में. वेरी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, नेवर एग्जैजरेट, नेवर पुट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन हैव अ लुक. ये हिस्ट्री के नोट्स हो गए. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, है ना, दिस इज वॉट, ये आपकी पहाड़ियां हैं. यूपीएससी यही पूछता है, ऑर्डर ही आता है इन हिल रेंजेस का जनरली, तो बस ऑर्डर ही लिख लिया, द ऑर्डर. दिस इज द क्रिस्पनेस ऑफ द नोट्स दैट वन शुड हैव. करेक्ट, मीजो, बरेल, मिकिर, नागा, पटकाई, मशमी एंड डाफला. बस ऐसे ऑर्डर लिख लिया, अब देखते याद आ जाएगा एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. क्लियर, बात समझ आ गई ये वाली. सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं. ठीक है, if you are correct with the question, just glance through it, and if there is something new, just add it in your notes. If you got a question wrong, either you can, if it was from your source, you can just go and underline in your source or add it to notes. दो चीजें हैं. If it was completely new, it was not in your source, not from your source, then put it in your notes in a crisp format, in a very crisp format, जैसे अभी दिखाया आपको. This is how you will make notes out of your things. इसका फायदा क्या होगा, why do we need to make these notes? सबसे पहली चीज क्या है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो जाएगी. सेकंड चीज क्या है, रिवीजन में हेल्प करेगा द नेक्स्ट टाइम. ठीक है, थर्ड चीज क्या है, क्वेश्चंस कई बार डायरेक्टली इन चीजों से फंस जाते हैं. व्हेन यू आर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ एमसीक्यू, सॉल्विंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, क्वेश्चंस यहाँ से या फिर इसके बेसिस पे किसी नॉलेज से आप सॉल्व कर पाते हो. सो दिस व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग इट इन द सेकंड फेज, इन द थर्ड फेज, इन द फोर्थ फेज, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठ जाती है. एंड देन दिस इन्फॉर्मेशन कैन डायरेक्टली हेल्प यू इन सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड गेटिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स. बात समझ आ गई. I hope this particular thing is clear. All of this is already being done at the YPLP program. ये prelims last prelims program that is being run by Understand UPSC. It is Understand UPSC initiative, free of cost for aspirants who are giving prelims 2024. So please, if you have not been a part of it, check out the description, check out the Telegram channel of Understand UPSC, join it. It is a pinned message on the Understand UPSC Telegram channel. You need to join it, you need to start following the plan. This is very, very important that you do, and I wish you the best of luck. I wish you a great new year. Whatever has happened in this particular year, just forget it and look forward to the new year. Look forward to making new records for yourself and then breaking them in this year itself. Alright, the time to hustle is now, the time to work hard is now. This is Satyam Jain for the time being, signing off till we meet next time. Jai Hind, Vande Mataram. Keep attempting mocks, keep analyzing them, don't get habitual, keep making notes. Take care.